Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So as we have assigned holiday homework to you people, so we have assigned 3 questions. So the first question is, write a short note on famous personalities. So let us see one by one here. So one of the famous personalities is Dr. APJ Abdul Kalam. So first we will see the full form of APJ. A for Awul, P for Pakir, and J for Jainul Abdin. So this is the full form of APJ. So Dr. APJ Abdul Kalam was a great scientist and the 11th president of India. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे और हमारे हिंदुस्तान के इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया for his work in space and defense technology. Because of his hard work in space and defense technology, he is called the Missile Man of India. Here the word space has been written. The meaning of space is the area beyond the earth where the sun, moon, stars and planets are found. यानी कि ज़मीन के बाहर की वो जगह जहाँ पर सूरज, चाँद, सितारे और सैयारे होते हैं, उन्हें स्पेस कहते हैं. And the next word is defense technology. Here the meaning of the defense technology means the machines and equipments and systems used to protect a country from enemies and keep it safe. यानी कि ऐसे मशीन, आलात और निज़ाम जो किसी मुल्क की हिफाजत और दुश्मनों से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल मिसाइल्स एंड फायर जेट्स. So this is the defense technology. And the next point is, he loved teaching students and encouraged them to dream big. यानी कि वो हमेशा बच्चों को है ना आगे बढ़ने और अपने ख्वाब पूरे करने की नसीहत करते थे. Means he loved teaching students and always motivated them to dream big and work hard. And the next point is, his life shows that with hard work and determination anyone can achieve success. यानी कि he always teaches that with determination, dedication and hard work anyone can achieve success. यानी कि मेहनत और अज़्म के साथ हर इंसान कामयाब हो सकता है. यानी कि अगर वो सख्त मेहनत करता है और उसका इरादा मुसम्मम होता है तो वो हमेशा कामयाब इंसान कहलाता है. उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है. सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्टर APJ Abdul Kalam. Now the another famous personality is Malala Yousafzai. So here you can see the picture of Malala Yousafzai. Malala Yousafzai is a brave and inspiring girl from Pakistan and she stood up for girls' right to education. Means Malala Yousafzai पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं and she stood up for a girls' right to education. यानी कि उन्होंने लड़कियों की तालीम के हक़ के लिए आवाज़ उठाई. She believed that every girl should be allowed to go to school and learn. She faced many challenges but showed great courage. That is why she became the youngest Nobel Prize winner. Here the word Nobel Prize has been written. The meaning of Nobel Prize is, it is a very prestigious international award given to people who have made outstanding contribution for the benefits of humanity. यानी कि नोबल इनाम उन लोगों को दिया जाता है जो इल्म, अमन या इंसानों की भलाई के लिए बड़ा और अहम काम करते हैं. सो इसी को नोबल प्राइज़ कहते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़, हर लाइफ इंस्पायर्स चिल्ड्रन टू वैल्यू एजुकेशन एंड स्पीक फॉर देयर राइट्स. यानी कि उनकी ज़िंदगी बच्चों को तालीम की कद्र करने और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की तरग़ीब देती हैं. यानी कि वो हमेशा बच्चों को ये समझाती थी कि तालीम के लिए और अपने हुकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहना चाहिए. नाउ वी विल सी द अनदर फेमस पर्सनालिटी, दैट इज़ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह. टीपू सुल्तान वॉज अ ब्रेव रूलर ऑफ मैसूर. यानी कि वो मैसूर रियासत के एक दिलेर और ताकतवर हुक्मरान थे. ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट हिज किंगडम. यानी कि उन्होंने अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी. यानी कि वो
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ा करते थे टीपू सुल्तान। ही इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर फॉर हिज करेज, यानी कि बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट करेज एंड फियरलेसनेस इन बैटल ही वॉज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर। अपनी बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड न्यू आइडियाज़, यानी कि टीपू सुल्तान वॉज नॉट ओनली अ वॉरियर बट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन साइंस एंड न्यू आइडियाज़। उन्हें साइंस और नई ईजादात में भी दिलचस्पी थी और उन्होंने अपने दौर में जदीद हथियार यानी कि एडवांस्ड वेपन्स बनाए और टेक्नोलॉजीज से भी इंट्रोड्यूस कराए, विच मेड हिज आर्मी स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से उनकी फ़ौज बहुत ही मजबूत हो गई थी। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। नाउ द अनदर फेमस पर्सनालिटी इज़ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि उन्हें बाबा-ए क़ौम कहा जाता था। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था, यानी कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहा था, तो उस वक्त है ना महात्मा गांधी जी का बहुत ही अहम रोल था। ही फॉलोड द पाथ ऑफ द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि जिसे अहिंसा कहा जाता है। गांधी जी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला करते थे, यानी कि अदम तशद्दुद जिसे अहिंसा कहा जाता है, यानी कि कभी भी खून खराबा नहीं होना, फिर भी हम आज़ादी हासिल करना। अहिंसा और सच्चाई का रास्ता अपनाते हुए गांधी जी ने हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने में बहुत ही अहम रोल अदा किया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही लेड मूवमेंट्स लाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सॉल्ट मार्च। सो यहाँ पर देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सॉल्ट मार्च, ये दोनों क्या है, प्रोटेस्ट है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो गांधी जी स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर सॉल्ट मार्च में ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तानियों पर है ना नमक के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, तो ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। तो इसीलिए गांधी जी ने तमाम लोगों को मुत्तहिद करके, यानी कि तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद करके कई 240 मील का फासला तय करते हुए समंदर से जाकर ख़ुद नमक तैयार करते हुए ब्रिटिश रूल के ताकत को कमज़ोर कर दिए। तो यही सॉल्ट मार्च है। हिज सिंपल लाइफ एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, यानी कि देखिए यहाँ पर आप गांधी जी की तस्वीर देख सकते हैं कि कितना सिंपल उनका पहनावा है। तो गांधी जी का पहनावा बहुत सिंपल था मगर सोच बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से हम आपकी सोच से इंस्पायर, यानी कि हमें इंस्पिरेशन मिलता है गांधी जी की सोच से। तो यही सोच से, यही पहनावे से वो लोगों का दिल जीत लिया करते थे और हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किए हैं। हियर वन मोर फेमस पर्सनालिटी इज़ कल्पना चावला। कल्पना चावला वॉज अ फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉट। देखिए यहाँ पर एस्ट्रोनॉट का जो वर्ड यूज़ किया हुआ है उसे खलाबाज कहते हैं, यानी कि स्पेस में जो जाते हैं लोग उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो कल्पना चावला क्या है, एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट थी, इंडियन एस्ट्रोनॉट थी। एंड शी वॉज बॉर्न इन कर्नल हरियाणा, यानी कि हरियाणा स्टेट की रहने वाली थी, वहीं पर उनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट शी हैड ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फ्लाइंग फ्रॉम चाइल्डहुड। उन्हें है ना बचपन से ही हवाई जहाज़ और खला में जाने का शौक़ था। शी वर्कड हार्ड एंड बिकेम एन एस्ट्रोनॉट एट नासा, यानी कि यहाँ पर नासा का जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि देखिए वो अपनी मेहनत से, लगन से नासा की एस्ट्रोनॉट बन गई और स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन वुमेन कहलाई। उन्होंने खला में जाकर हमारे इंडिया का सिर्फ नाम ही नहीं रोशन किया बल्कि हम सबको ये सबक दे गई कि अगर हम मेहनत करें तो हम अपने ख्वाब को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। So this was all about the famous personalities, and as soon as possible I will upload the next video for the next question.